वेलकम टू सबटेक प्रीवियस क्लास रे हमें पढ़िथिले कूलम्स लॉ व्हाट इज चार्ज कूलम्स लॉ देन हम पढ़िथिले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ए सब पढ़िथिले आज क्लास रे हमें पढ़िबा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड ड्यू टू एक इक्वेटोरियल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करिबा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हमें पढ़िबा आज कोन ना इलेक्ट्रिक डाइपोल What is an electric dipole? A dipole consists of a pair of charges and is separated by a small distance. That is called an electric dipole. So it consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. Suppose I consider two charges, that is negative charge q and a positive charge q, and they are separated by a small distance r. That is called an electric dipole. Because this is pair of charges and they are equal and opposite, and they are separated by a small distance r. That is called an electric dipole. Now I am going to put electric dipole moment. It is defined as the product of magnitude of either charge and distance between the two charges. This is a dipole. This is the center of the dipole. If total distance is 2L, origin to negative charge distance is L, and origin to positive charge distance is L. So the dipole moment is denoted by the letter P. Dipole moment is equal to magnitude of either charge in a distance between the two charges. The distance between the two charges is also called the dipole length. आमे 2L नहीं परिबा L भी नहीं परिबा सुविधा पाई आमे कोन नउचे ना 2L नउचे कारण एउडे एति पॉजिटिव L एटु एति कोन L किंतु जदि मु एउडु कोन नेमी ना एटि L धरिबि एटा L/2 so for easy calculation we can consider this 2L तमे एटि L भी नहीं परिबो किछि प्रॉब्लम नहीं so this is the dipole moment. That is also defined as the product of what we can say the product of either charge and the distance between the two charges. Next, its magnitude, its unit, dimension and direction. Its unit is charge unit coulomb into meter. Dimension P equal to Q into 12. Charge dimension कौन Q is equal to 80. Length dimension L. That is L1, T1, A1. Always remember that the direction of the dipole moment is always from negative to positive. Negative charge to positive charge. So dipole moment direction is equal to negative charge to positive charge. Direction negative charge to positive charge. एग्जाम में एमती क्वेश्चन आसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन दी मार्क क्वेश्चन पड़ती है बेले बेले पड़े एक मार्क क्वेश्चन पड़ती है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट
एक मारे क्वेश्चन काउंसिल लो पड़ची प्रीवियस ईयर 2020 रे देखिबो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डायपोल मोमेंट क्वेश्चन पड़ची डायमेंशन यूनिट एटा सब मन रखिबो नेक्स्ट आमे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करिया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल गोटे एक्सियल लाइन ले बाहर करबा और कोन इक्वेटोरियल लाइन थर्ड केस रे पड़िया हमें कोन ना एट एनी पॉइंट फर्स्ट व्हाट इज एक्सियल लाइन ना जदि आमे गोटे कंसीडर करिया गोटे डायपोल एटा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल if the line passes through the center of the dipole or axis of the dipole तुम मानो कि एमती जे सेंटर ऑफ द डायपोल द लाइन which passes through the center of the dipole this is called the axial line this is called the axial line the line and the line which is perpendicular to the axial line is called equatorial line एमती मते तुम कोइ परियो जदि मी एटा कंसीडर करी एटा दिस इज द डायपोल लेंथ 2l this is length l origin to negative charge l origin to positive charge l जदि मु एटा एमती कोन करबी ना जॉइन करे देबी देखो एटा इक्विलेटरल ट्रायंगल भले देखा होची एटा कोन होची ना इक्विलेटरल ट्रायंगल भले देखा होची सेति भाई एटा हम कोन कहूचे ना एटा इक्वेटोरियल लाइन कहूचे एटा कोन कहूचे हमें इक्वेटोरियल लाइन इज दैट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन हमें मध्ये एमती कहि परिबा देखो ए इक्वेटोरियल लाइन ता क्रॉस कला परे पूरा डायपोल ता कोन होची ना इक्वल टू भाग रे डिवाइड होची दिटा इक्वल भाग रे डिवाइड होची सेति एटा कोन हला ना इक्वेटोरियल लाइन को कहूचे so this is the line which passes through the center of the dipole is called the axial line and the line which passes through the which is perpendicular to the axial line is called the equatorial line तो नेक्स्ट टाइम देखिए कौन इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the axial line due to an electric dipole एटा लॉन्ग क्वेश्चन काउंसिल लो 7 मार्क के पड़े आउटे इक्वेटोरियल लाइन अछि सेटा गोटे 7 मार्क क्वेश्चन एट एनी पॉइंट हमें एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन रो जो डेरिवेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड रो जो वैल्यू डिटरमाइन करबा एट एनी पॉइंट जते बेले करियो तमे देखिबो मध्ये था केस रहला पड़े एनी पॉइंट रो जो फाइनल रिजल्ट आसियो सेठु मध्ये हम कोन करि परिबा ना एक्सियल लाइन आ इक्वेटोरियल लाइन रो रिजल्ट हम डिटरमाइन करि परिबा सो हमें केस 1 रे कोन पड़िबा ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on the axial line due to an electric dipole लगे समझते Consider an electric dipole, negative charge, positive charge. This is the center of the dipole. The dipole length is 2l. Origin to negative charge l, origin to positive charge l. Suppose I consider a point P here. This is called the observation point, at which we want to calculate the electric field due to the electric dipole. Point P is the point where we calculate the net electric field due to the electric dipole. And the point P which is at a distance r, we consider some parameters which is that are suppose the point P which is a distance r from the center of the dipole and this is also from distance r plus l. The negative charge पर कितना distance राशियो r plus l from the नेगेटिव चार्ज कारण एवढे डिस्टेंस केते r एवढे डिस्टेंस केते l ता टोटल डिस्टेंस केते वो p और नेगेटिव चार्ज भितर r plus l बुझि पाछो ना ओरो p जा डिस्टेंस केते मोर ना ओरो p जा डिस्टेंस हला मोर r पुनी ओरो नेगेटिव चार्ज जा डिस्टेंस माइनस q जा डिस्टेंस केते ना l ता टोटल डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू q केते केते हो मोर एठी तले r plus l भाई एम्प्टी मन रखो सपोज नेगेटिव चार्ज पॉइंट a रे अछि पॉजिटिव चार्ज पॉइंट b रे अछि ताले आमे बर्तमान कोन डिटरमाइन हम करिया अछि एपी डिटरमाइन करिया अछि एपी भाग तमे देखो एपी डिटरमाइन करिया अछि एपी इज इक्वल हम केते लिख परिबा ना ओए प्लस ओपी दैट इज केते ना l प्लस r बा r प्लस l आउट कोन डिटरमाइन करिया अछि ना पॉजिटिव चार्ज ता ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर केते डिस्टेंस रे अछि ताले सेटा कोन ना pb बा bp
बीपी रो डिस्टेंस केते हबो ना टोटल देखो पूरा मोर एति डिटरमाइन करियर अछि ना एति करू जदी मु एति कट कर दउची एति डिस्टेंस तने केते हिबो r माइनस n तने केते आसी एटा ना मु लिखिबी OP माइनस OB इज इक्वल टू केते हिबो r माइनस n देखो पूरा अछि केते ना टोटल अछि r मु एति काट दउची कोडा OB टा काट दउची तने एति पाइछि पर दरकार नाथि कि जे पॉजिटिव चार्ज टा पॉइंट p बा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पाकरू केते डिस्टेंस अछि दैट इज r माइनस n आमे एई पॉइंट रे कोन करबा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया का पई पूरा डायपोल पई किंतु प्रथमे आमे नेगेटिव चार्ज पई थोड़ा देखबा इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू पॉजिटिव चार्ज पई देखिया ताको ऐड कर देबा पळै आसीबा आराम से देखो पॉइंट p रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू बर्तमान देखि ड्यू टू एज वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन रेडियली आउटवर्ड आमे पढिछे पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन ना रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज पई धरो नबो और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सब कोन थिला ना रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन आ नेगेटिव चार्ज पई कोन थिला ना रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन बा कन्वर्जेंट किंतु पॉजिटिव चार्ज पई कोन थिला ना डाइवर्जेंट थिला सब पॉजिटिव पई सब डाइवर्जेंट थिला नेगेटिव चार्ज पई कोन थिला कन्वर्जेंट और रेडियली इनवर्ड सो एटा देखो मु जदी प्रथमे पॉजिटिव चार्ज पई देखिबी पॉइंट p ठारे पॉजिटिव चार्ज पई जदी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखिबी का पई देखिबी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पई नेगेटिव चार्ज पई p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हबो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन here e1 angle between them is 180 degree e1 and e2 are in opposite direction e1 and e2 are in opposite direction so net electric field at the point p now we calculate the net electric field at the point p हम देखिबा टिके एटी शॉर्टकट करिबा एटी टिके डिस्टेंस रे जिबा डिस्टेंस r minus l r plus l this is the axial line by मार परछे है ना net electric the resultant electric field at p due to electric dipole on the axial line is E equal to E1 plus E2. Here E1 and E2 are in opposite direction, so E1 minus E2. E1 and E2 are in opposite direction. प्रथम का पाई मार करबा E1 का पाई ना हमें पॉइंट p रे देखुचे पॉजिटिव चार्ज पाई पॉइंट p रे पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन थरा रेडियली आउटवर्ड E1 दन केते हिजबो ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कोन पडितले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर और k q by r स्क्वायर दैट इज k मैग्नीट्यूड ओनली कंसीडर करिवो q बाय डिस्टेंस केते अछि पॉजिटिव चार्ज टू डिस्टेंस p जा डिस्टेंस केते ना r plus l होल स्क्वायर r minus l होल स्क्वायर एंड e2 रे वैल्यू केते अछि ना e2 रे मोर वैल्यू अछि सेम आसीबो मैग्नीट्यूड ओनली कंसीडर करिवो डायरेक्शन किछि न नेचर चार्ज किछि नबनी नेट केते हो r plus l रो होल स्क्वायर नेक्स्ट हम कोन कोन कैलकुलेट करबा एटा को त e इज इक्वल टू केते हिजबो e1 minus e2 दैट इज इक्वल टू केते ना kq by e1 है r minus l रो होल स्क्वायर minus kq by r plus l रो होल स्क्वायर e equal to केते हबो kq कॉमन ले जाओ 1 by r minus l रो होल स्क्वायर by 1 by r plus l whole square LCM केता हो kq
r minus l रो होल स्क्वायर r plus l रो होल स्क्वायर एलसीएम कला पर केते आसी एठी रोइबो ना r plus l रो होल स्क्वायर माइनस r minus l रो होल स्क्वायर कारण एटा माने से कैंसिल होला पर एटा एठी मल्टीप्लाई हे जिवो तापर r plus l रो होल स्क्वायर कैंसिल होला पर r minus स्क्वायर एठी कैंसिल हे जिवो मल्टीप्लाई k q a plus b रो होल स्क्वायर माइनस a minus b रो होल स्क्वायर फॉर्मूला कहते हैं 4ab 4 into r a होला r एटा ला n by a minus b a plus b टोटल होल स्क्वायर देखो एटा भी स्क्वायर अछि एटा भी स्क्वायर अछि गोटे कॉमन लो स्क्वायर कर दबो तले मैं कर दउची तमे एमती भी नै परिबो r minus l r plus l ताकू पूरा कॉमन रे स्क्वायर कर दबो एटा पूरा ब्रैकेट नै की बे सुविधा हो e is equal केते हिजबो k into q एटी केते रहले हमर 4r into l a minus b into a plus b a square minus b square r square minus l square total whole square मु कोन करबी एटी छुआ ना 2 गुटे मल्टी 2 into k 2 बाहर पड़ी आनी एटी 2 जो रहिला तो एटी कोन करबी ना q into r ता मध्ये बाहर करियानो q into 12 2 बार काढी आणली k into r q into 12 by r square minus l square square that is 2kr either charge into distance or dipole length कोन ना dipole moment p by r square minus l square whole square केते हिजबो ना वर्तमान मुडा assumption नेमी suppose the distance r is very large as compared to L. If R is greater than L, then R square minus L square is equivalent to R square. So E is equal to 2kr into p by r square minus l square is equivalent to r square that is r square whole square that is 2kr p by r fourth r कटि जीवो r cube केता आसीबो ना k into 2p by r k into 2p by r sorry r cube k into 2p by r cube the net electric field on the axial line equal to कितना आएगा ना k into 2p by r cube. Here the dipole moment is a vector quantity. You remember that dipole moment is a vector quantity because it has both magnitude and direction. And the direction of the dipole moment is from negative charge to positive charge. So here it is the resultant electric field for the axial line due to an electric dipole. Here E directly proportional to P and E inversely proportional to 1 by R cube. Electric field is in the same direction of the dipole moment. As E is directly proportional to P, so electric field is along the same direction of P. So our dipole moment direction को direction थिला ना negative charge to positive charge. So the resultant electric field is along the direction of कोन ना the resultant electric field is along the direction of the dipole moment. So towards the E1 है ना. Here the angle between as P and E are in the same direction, so the angle between dipole moment and the electric field is 0 degree. Angle between MCQ would सब क्वेश्चन है angle between the axial line, the angle between the dipole moment P and electric field E is 0 degree, and the angle between P and R also 0 degree. P and R also 0 degree. Dipole moment and the distance between the O to P distance कितना हमारा 0 degree. Angle between P and R is also 0 degree. This is the result.
आणि प्रॉब्लेम कला जणा पडिबा प्रॉब्लेम करिया था नेक्स्ट आम कोन पडिबा ना नेक्स्ट आम पडिबा इलेक्ट्रिक फील्ड on the equatorial line due to an electric dipole. Electric field at any point on the equatorial line due to an electric dipole. Electric field at any point on the equatorial line due to an electric dipole. पढ़ाई के आस्ते what is equatorial line? The line which is perpendicular to the axial line is called equatorial line. ताने सेमिथेटिक कोण करिबा ना ओटा डायपोल टे कंसीडर करिबा ओटा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज this is the center of the dipole and the dipole length is 12 that is origin to negative charge L origin to positive charge L. I consider a point, this is the equatorial line that is perpendicular to the axial line 90 degree. I consider a point P on the equatorial line. I consider a point P on the equatorial line and which is at this is also called the observation point. At this point we want to calculate the net electric field due to the electric dipole. This is at a distance r from the center of the dipole. देखो आमे पॉजिटिव चार्ज पई एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिबा नेगेटिव चार्ज पई मध्य एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिबा आमे जानि छे पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रेडियल इनवर्ड माने पॉजिटिव चार्ज पई p पॉइंट रे को चार्ज पई ना एटा पॉजिटिव चार्ज ए पॉजिटिव चार्ज पई मु p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखिबी ना पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड रेडियल दैट इज e1 एटा कर देला मोर माने कर e1 रेडियल आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज पई p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन रेडियली आउटवर्ड नेगेटिव चार्ज पई p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन रेडियली इनवर्ड so this is the direction of the electric field due to negative charge the resultant electric field is in the direction the dipole moment direction negative charge to positive this is the dipole moment direction of the dipole moment is from negative charge to positive charge already we know that next कौन करिबा लिखि देबा टी देखो ना पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक डायरेक्शन हमर करथला ना रेडियली आउटवर्ड दैट इज e1 डायरेक्शन एपट हला e2 डायरेक्शन द रिजल्टेंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज along this direction because from parallelogram law of vector addition we know that if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram then from the same point same initial point 0 मार दिबे then the result vector कोड बसिबो ना the result vector is represented by the diagonal of this parallelogram त result ना कोड आसीबो ना तार सही same point रु बाहरिबो अथा diagonal लाइन कोन दबो त result दबो एटा हम पढि देले यदि हम एटा को उडे जॉइन कर देम parallelogram law vector addition जाई so suppose it makes an angle theta it also makes an angle theta यदि मु एडो एक्सटेंड कर देबी ताले एटा से कते ना एटा एंगल थीटा एटा से एंगल थीटा एटा जो एंगल थीटा ला एटा कते हो एंगल थीटा दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एटा थीटा बेटा कते हो एंगल थीटा टोटल एंगल ताले e1 और e2 कते ला 2 थीटा टोटल एंगल e1 और e2 कते हो 2 थीटा
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बर्तमान को देखिया हमें पॉइंट पी रे एटा डाइपोल मोमेंट एटी पी हैला डाइपोल मोमेंट एटी पी हैला कोन ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो पॉइंट रे कि हमें बोथ डाइपोल पूरा डाइपोल पई कोन देखिया नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखु छी द रिजल्ट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to an electric dipole on the equatorial line is given by E1 plus E2. Here you consider the E1 केता हबो मैग्नीट्यूड नै गले जदि हम मैग्नीट्यूड नै कारण हम रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ले रिजल्ट जेतबे बाहर करथिले r केता आसला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट सो एटी कोन आसीबो ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा पचारे सर एक्सियल लाइन आपण गाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पके नथिलो ना एक्सियल लाइन रे आमी देखो सेठी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर आसु नथिला कारण एटी सेम डायरेक्शन ले इलेक्ट्रिक फील्ड ए पटे डायरेक्शन नथिला रे E2 तार ऑपोजिट डायरेक्शन नथिला पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन थिला रे नेगेटिव चार्ज कोन थिला तार ऑपोजिट डायरेक्शन थिला तो सेठी कोनोसी प्रकार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करि पार नथिले किंतु एठी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूचे जोथि पई कि तार मैग्नीट्यूड काढिया पई तार रिजल्टेंट फार्मूला हम यूज करछे हैला दैट इज स्क्वायर रूट एटा हो तन वर्तमान में E1 बाहर करिबा E1 का पई ना E1 पॉजिटिव चार्ज पई E1 का पई बाहर करिबा पॉजिटिव चार्ज पई ना से पॉजिटिव चार्ज पई E1 फार्मूला कोन हो सही सेम kq बाय देखो एटा ओटे kq बाय r स्क्वायर किंतु एटी r स्क्वायर कोन ना r स्क्वायर माने ए पॉइंट p रु पॉजिटिव चार्ज ता केते डिस्टेंस रहछि एठी भी r स्क्वायर नेगेटिव चार्ज पे काढियो पॉइंट p रु नेगेटिव चार्ज ता केते डिस्टेंस रहछि केमति काढिबा आ देखो एटा हला 90 डिग्री एपटा के डिग्री 90 डिग्री तने वर्तमान मन करो एटा a नै जाओ एटा b नै जाओ एटा ट्रायंगल फॉर्मेशन हे जिवो एटा वर्तमान जब तुम देखिबो OAP कोन ट्रायंगल लिखियो बा प्रथमे देखो OBP ट्रायंगल एटा 90 डिग्री एटा की ट्रायंगल हे गेला ना सर एटा राइट एंगल ट्रायंगल जदि उडा राइट एंगल ट्रायंगल हे गेला आ एपट OBP गुडा राइट एंगल ट्रायंगल आ लेंथ केते L ता डिस्टेंस केते R एपट L तार परपेंडिकुलर हैला ए r बेस केतला l तार एटा केते राइट एंगल जे हाइपोटेन्यूज केते हबो ना स्क्वायर प्लस l स्क्वायर स्क्वायर सेम एपडी भी सेम आसीबो एटा r एटा l एटा राइट एंगल ट्रायंगल एटा भी केते आसीबो ना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 केते हबो पॉजिटिव चार्ज पाई ना k q आ p पॉइंट पाखरु से केते डिस्टेंस रहछि पॉजिटिव चार्ज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर कारण एटा हला r तार होल स्क्वायर दैट इज kq by r square plus l square because square root of square cancel हो similarly for E2 kq by एटी डिस्टेंस केते ना नेगेटिव चार्ज ता पॉइंट p पाको केते डिस्टेंस रहछि ना से सेम डिस्टेंस r square plus l square root over r whole square that is kq by r square plus l square देखो दी जण को सेम अछि कोन मैग्नीट्यूड समान अछि दी जण कोन अछि मैग्नीट्यूड समान अछि सो हमें कैलकुलेशन इजी करिया पे कोन करबा ना लेट E1 E2 x बनबो एटा से काहे कि ना एते बडो 200 को नै छटी कोन करिया कैलकुलेट करे के बडो बारिबो त मा कोन करी ना x लबी तापर कैलकुलेशन कोलारे इजी कैलकुलेशन हे सुविधा बतम ताले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला इट पके दियो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पाई E E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 किटो कोन आछो एंगल बिटवीन E1 एंड E2 टोटल एंगल ना केते एठी टोटल एंगल ना 2 थीटा दैट इज cos थीटा नो cos 2 थीटा कारण एठी E1 E2 भितरे व्हाट इज द एंगल थीटा दैट इज एंगल बिटवीन E1 एंड E2 2 थीटा रेजोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P E1 केते ना E1 और E2 रो मैग्नीट्यूड जेतु समान थिला हम त कोन अज्यूम करछे x and x स्क्वायर
प्लस x स्क्वायर 2 into e1 जे x e2 भी x cos 2 थीटा रो स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 2 थीटा नेक्स्ट 2x स्क्वायर कॉमन नबा 1 प्लस cos 2 थीटा रो स्क्वायर रूट 2 into x स्क्वायर 1 प्लस पछपटु माइनस ते माने cos 2 थीटा कोन ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज करियो जदी पछपटु माइनस था यूज करता तो कोन cos 2 थीटा फार्मूला 1 minus 2 sin square थीटा जदी पछपटु तमरो जदी जोडा नो cos 2 थीटा पूर्व जदी प्लस थिबो ए फार्मूला यूज करियो जा दरे तमरो प्लस 1 minus 1 कैंसिल होबा को सुविधा हो जदी cos 2 थीटा पूर्व नेगेटिव साइन थिबो 1 minus 2 sin square थीटा नबो कारण माइनस 81 थिबो प्लस माइनस 1 कैंसिल होबो एनु एडी प्लस 1 minus 1 कैंसिल होरा स्क्वायर रूट चिन्ह दबो 2x स्क्वायर 2 cos square theta that is 4x square cos 2 theta সেটা কত হবে না 4 র স্কয়ার রুট কত 2x cos theta সরি এটা cos square theta cos theta 2x into cos theta the resultant electric field at the point p हमरे कत आसिला ना resultant electric field at the point p is equal to 2 into x into cos theta x तो हमें जानि छे तमे आइदर x हम का धरछे e1 को धरछे e2 नै छे जहार वैल्यू पुट कर तमे x वैल्यू पाइ दिबो किंतु cos थीटा वैल्यू हमें जानि छे कि नाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos theta is equal to according to trigonometric ratio base by hypotenuse जदी मोर एंगल थीटा नेबी और एंगल सामने रे जे एक्चुअली ये हैला परपेंडिकुलर ये हैला बेस किंतु यदि एटा एंगल नहीं जाय बेले बेले एक्सचेंज हो जाय परपेंडिकुलर बेस एक्सचेंज हो केबे हाइपोटेन्यूज एक्सचेंज हो नाही एंगल सामने जे रहला से हैला परपेंडिकुलर ये कोन हम बेस एटा एंगल थीटा अछि एंगल सामने जे रहला परपेंडिकुलर ये हैला बेस तने बेस केते हैला ना बेस हैला l हाइपोटेन्यूज केते ना l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज l by r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर स्क्वायर रूट तने 2 into एटा cos थीटा वैल्यू 2 into x वैल्यू वाला आइदर तुम्हें पॉजिटिव गोटे u1 वैल्यू नियो बा u2 वैल्यू नियो कारण एटा आजिम करथले kq by r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर into cos थीटा केते वाला ना l by r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर स्क्वायर रूट एटा स्क्वायर रूट धरो नेक्स्ट कोन बा 2 into k into q into l by r square plus l square to the power 3 by 2 नेक्स्ट कोन करिबा ना अज्यूम करिबा हम एमटी मु लिखि पारि मध्यटा कोन लिखि पारिबी ना k टा को बाहर काढि आनो q into 2l ताने एटा कोन हिबो डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ दैट इज r square plus q into 2l r square plus l square 3 by 2 next हम कैलकुलेशन करबा अज्यूम करबा if r is very greater than l then r square minus l square is equivalent to r square net electric field at the point p k into product of either charge and dipole length is called dipole moment p by r square plus l square is equivalent to केते ना r square पावर केते रहिबो 3 by 2 देखो r square plus l square एडी केते मु अज्यूम करछि ना is equivalent to r square पावर केते रहिबो 3 by 2 k into p 2 कटि जिवो r cube ताने k डा बाहर कढि आनो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट और वेक्टर क्वांटिटी p दे दियो by r cube also electric field is also a vector quantity ताले एठी हमें कोन पाइले ना द resultant electric field due to a dipole on the equatorial line is k into p by r cube हम एक्सियल लाइन मध्ये देखले एठी r cube असला इक्वेटोरियल लाइन मध्ये कोन देखले एठी कोन आसी ना एठी मध्ये r cube आसी किंतु गोटे कथा देखो एठी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ना को डायरेक्शन अछि सर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तमरो एटा हला p बा डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन देखो एटा नेगेटिव चार्ज एटा कोन हला पॉजिटिव चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन रहउछि नेगेटिव चार्ज टू
पॉजिटिव चार्ज किंतु नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रहउची तार ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ले डायपोल मोमेंट डायरेक्शन अछि इलेक्ट्रिक नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तार ऑपोजिट डायरेक्शन में ताने एटी नेगेटिव साइन दबा नेगेटिव साइन दा कोन हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the electric field and the dipole moment are in the opposite direction किंतु एक्सियल लाइन में हमें कौन देखथिले ना एक्सियल लाइन में देखितले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dipole moment are in the same direction so that the angle between dipole moment and electric field in case of the axial line केते आसला 0 डिग्री किंतु एठी जेहेतु नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या dipole moment कोन रहउछनी ऑपोजिट डायरेक्शन होउछनी मन रखि बडो शॉर्ट क्वेश्चन एटा उडे the angle between the electric field dipole moment and electric field in case of the equatorial line is 180 degree मन रखि बेटा शॉर्ट क्वेश्चन सेठी एटा जे कंपेयर करबे आपण मु देखिबो आउट शॉर्ट क्वेश्चन मन रखि देखो dipole moment को डायरेक्शन अछि ना नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एपो डायरेक्शन अछि तमरो डिस्टेंस r डायरेक्शन एपटे p जो पटे अछि ताले एटी p और r के एंगल केता अछि 90 डिग्री प्रॉब्लम कला एडा आसियो द एंगल बिटवीन p and r is 90 degree but the angle between p and e is 180 degree because the dipole moment and the net electric field is a opposite direction so the angle between p and e is 180 degree the angle between p and r is 90 degree it is negative sign masio mono negative sign indicates that the dipole moment is in the opposite direction of the resultant electric field एठी मध्ये कोन आसला ना एठी हम देखले मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r3 रेजोल्ट मन लक्ष्य सब प्रॉब्लम केला करा दिबो एवडा सब दरकार दुई हजार कोड़े मसीह 19 फिजिक्स एग्जाम रे मोर मने पड़न सठिक गोटे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पड़थिला एमती देखौची कोन देखो द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन पड़थिला 2020 रे एक मार्किया आमे इलेक्ट्रिक फील्ड रो एक्सियल लाइन ले कोन पाइले ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो एक्सियल लाइन ना पाइले k * 2p / r3 मैग्नीट्यूड ओनली कंसीडर करियो डायरेक्शन नवा दरकार नै एठी तो गोटे कंपेयर करी देखौची kp / r3 किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड जे बाहर करबा इक्वेटोरियल लाइन ले हम देखु कोन ना k * p / r3 जदि मु एई जगह रे ई एक्सियल जगह रे जदि 2 टा को बाहर काढी आन छुआ 2 टा को बाहर काढी आन रोइला केते ना k * p / r3 ताले कोन होचे एठी ना लक्ष्य करो एटा कहा से समान 2 बाहर करन एटा कहा से समान दिस इज इक्विवेलेंट टू ई इक्वेटोरियल ताले 2 * इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल से समान ताले मु कोन लिख परबी ना जदि एटा मु लिखिबी ई एक्सियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल वैल्यू जति की ट्वाइस ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन ट्वाइस टाइम्स and E axial electric field axial y electric field equatorial is equal to 2/1 that is 2:1 এটা ওটা এমসিকিউ পড়ছিলা যদি পড়ছিবো ইকুয়েটোরিয়াল বাই এক্সিয়াল তাহলে 1:2 হলা তাহলে আমি ফাইনালি কনক্লুজন কোন পাইলে না যদি মু এটি কোন দেখিবি না যদি মু এটি এক্সিয়াল লাইন দেখিবি আর ওটা কোন দেখিবি না ইকুয়েটোরিয়াল লাইন দেখিবি एडी एंगल बिटवीन P एंड E देखिबी एमसीक्यू पाई इंपोर्टेंट रिजल्ट्स गुडा को P एंड R देखिबी इन द एक्सियल लाइन में हमें कोन देखिले ना डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक पढ़ी जाइले डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन आउ सही एक्सियल लाइन रे हमें P और डायपोल मोमेंट आउ पोजीशन वेक्टर एंगल केते पाइले 0 डिग्री सिमिलरली इन द इक्वेटोरियल लाइन में कोन देखिले ना डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल कोन थला ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री आस्तिला
इक्वेटोरियल लाइन ले ये एपटे थिला रेजोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री आ पी आ आर भितर एंगल केते थिला ना डायपोल मोमेंट एपटे थिला डायपोल मोमेंट एटा कोन थिला आर ऊपर को थिला 90 डिग्री ए रेजल्ट मन रखो एक मार्क के प्रॉब्लम कोला एटा सब जमा पड़ियो नेक्स्ट आमे पढिबा कोन ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन एई दिटा जो रिजल्ट बाहर कली एई दिटा रिजल्ट मध्ये हम वर्तमान एट एनी पॉइंट रे देखिबा से एनी पॉइंट रे मध्ये एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन रे रिजल्ट हम डिटरमाइन करि परिबा देखो हम करछि एंट्रेंस ପାଇଁ भी इंपोर्टेंट एटा उडे किंतु हम सिलेबस रे केबे पढेनी एई दिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क क्वेश्चन एक्सियल लाइन आ इक्वेटोरियल लाइन एटा 7 मार्क क्वेश्चन मु आदर कोन करबी ना तमर प्रीवियस ईयर जत्ते सब काउंसिल क्वेश्चन अछि सब सॉल्व कर देबी 11th क्लास 12th क्लास फिजिक्स का प्लस 2 फर्स्ट ईयर प्लस 2 सेकंड ईयर फिजिक्स जहां भी अछि मैक्सिमम एससी वर्मा प्रॉब्लम्स डीसी पांडे सम प्रॉब्लम्स ऑफ एससी वर्मा डीसी पांडे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आदर करेबी आ प्रीवियस ईयर काउंसिल क्वेश्चन सब एठी सॉल्व कर देबी किछि असुविधा होबा नै तमे कोन करिवो ना सैंपल पेपर्स नै आसीओ बही फॉलो करिवो कोन एसएलआर रा बारिकदा शर्मा डीसी पांडे जहां भी फॉलो करो मेनली तमे जदी एसएलआर रा भलसे करूछो किछि दरकारी काउंसिल पई पूरा भलो कि डीसी पांडे जे नीट पे प्रिपरेशन करछि डीसी पांडे करो जेईमेन जे प्रिपेयर करछि से एससी वर्मा डीसी पांडे भी अछि जेईमेन पई गुटे अलगा डीसी पांडे अछि ताको फॉलो करो काउंसिल पई मु जति पढो छी बहुत इंपोर्टेंट जति अछि कर दबो काउंसिल पई हेजिबो बहुत ताटो हार्ड क्वेश्चन करा जिवोटी काउंसिल ताटो सहज पडिबो किंतु मु जति क्वेश्चन करू छी काउंसिल पई एठी कर प्रॉब्लम एसएलआर रा मेनली प्रैक्टिस करो जैसे क्वेश्चन अछि पढिबा पई एसएलआर रा सुविधा बहुत एसएलआर फॉलो करो ना बारिकदा शर्मा जहां भी फॉलो करो electric field at any point due to an electric dipole आमे उडे एनी पॉइंट देखिया प्रथमे एक्सियल लाइन देखथिले आउडे इक्वेटोरियल लाइन देखिले वर्तमान का पय लिखिबा ना वर्तमान एट एनी पॉइंट देखिया तले वर्तमान देखिए एट एनी पॉइंट रे सपोज आई कंसीडर ए डाइपोल दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल माने करो एठी एक्सियल लाइन इक्वेटर ला मारी मन पॉइंट नेली पी एठी कोन नेली ना गोटे पॉइंट पी नेली व्हिच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सपोज इट एटा केते थीटा एंगल नेली डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन हमें कोन जानि छे एटा एनी एंगल अछि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा बा एट एनी एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोन छी हैला एटा नेगेटिव डायरेक्शन कोन अछि ना नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कोन अछि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज पी धरि परिबा एमिति लिखि परिबा पी जे तू ये कोन करछि ना ए पी आर से तो थीटा एंगल करछि का जे तो ए आर से तो ओ टू पी तो डिस्टेंस आर और ए पड ए पी रो कंपोनेंट एपडी कोन आसीबो ना पी cos थीटा पी cos थीटा ता परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोड आसीबो एटा आसीबो p sin थीटा p sin थीटा p sin थीटा is the perpendicular component of the dipole moment and p cos theta is the perpendicular component of the dipole moment remember that p is the observation point which is at a distance r from the center of the dipole देखो आमे प्रीवियस क्लास आमे पढिथिले जेटा पढिथिले एक्सियल लाइन रे आमे पढिथिले ए p ए o ए पॉइंट रे एटी p cos थीटा कोन ना p cos थीटा ले p पॉइंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड ए p पॉइंट रे आमे देखिया एट एनी पॉइंट ए p पॉइंट रे रेजोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आमे देखिया बुझि पाछो आमे पढिथिले कोन नाटा डाइपोल मोमेंट आदि रोइला p cos थीटा आमे पढिछे इन एक्सियल लाइन पई डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन आ एटा हला कोन ना डाइपोल मोमेंट रो एटा हला परपेंडिकुलर कंपोनेंट ताने एटा इक्वेटोरियल लाइन रो एटा एक्सियल लाइन रो ताने एटा डाइपोल मोमेंट रो
कोन होची ना p साइड रा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आमे पढिथिले इक्वेटोरियल लाइन कोन पढिथिले ना इक्वेटोरियल लाइन रे आमे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ डाइपोल मोमेंट कोन थिले ऑपोजिट डायरेक्शन रे सयसी थिला निकी एपटे हमर कोन थिला ना डाइपोल मोमेंट एपटे रहिथिला ले एपटे रहि नथिला ऊपर को एमथिला नै रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एपटे थिला ऑपोजिट डायरेक्शन ना जदी मोर p साइड रा एपटे रहउची तार म लिखि परिबि ना जदी मोर p साइड रे एपटे रहउची ताने इक्वेटोरियल लाइन पई डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोउटी पई ना इक्वेटोरियल लाइन पई ताने जदी p sin थीटा एटा डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन ता कहा पई ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट पई इक्वेटोरियल लाइन पई ना तार एटा इक्वेटोरियल लाइन पई परपेंडिकुलर पा इक्वेटोरियल लाइन पई डाइपोल मोमेंट कहते p sin थीटा ता परपेंडिकुलर कंपोनेंट तार ऑपोजिट डायरेक्शन कोन हो इलेक्ट्रिक फील्ड रो इक्वेटोरियल एटा ला इलेक्ट्रिक फील्ड रो इक्वेटोरियल लाइन ता आउ p cos रे हम जान एक्सियल लाइन कोन पड़थिले ना एक्सियल लाइन में देखतिले कोन ना p cos थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम डायरेक्शन से हम कोन होती p cos थीटा जो डायरेक्शन में अछि से सेम डायरेक्शन में के रहइबो ना e एक्सियल रहइबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो एक्सियल रा से डायरेक्शन रहइबो एटी e वाला लिखि देबो एटा लिखो e2 सुविधा हो तार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उठी जिवो ना एटा ला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आंक भीतर एंगल ला कते ना आंक भीतर एंगल ला 90 डिग्री आंक भीतर एंगल हमर कते आइला 90 डिग्री सपोज द रिजल्टेंट वेक्टर e मेक्स एन एंगल बीटा विथ आइदर हम डायरेक्शन लिखिबा एक्सियल सहित करू कि इक्वेटोरियल सहित इट मेक्स एन एंगल थीटा इट मेक्स एन एंगल बीटा डायरेक्शन जानिया पई बुझि पाइलो आउदर लक्ष्य करो एटा इंपोर्टेंट p sin थीटा ला डाइपोल मोमेंट रो परपेंडिकुलर कंपोनेंट p cos थीटा ला तार कोन एलोंग दा कंपोनेंट हमें एक्सियल लाइन ले कोन जानि छे ना ई p पॉइंट रे हमें देखिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पई ना ए डाइपोल पई देखिया p cos थीटा डाइपोल मोमेंट रो को कंपोनेंट ना एलोंग दा कंपोनेंट ताने p जो डायरेक्शन रहइबो e मध्ये एक्सियल लाइन नो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन रहइबो कारण p and e are in same direction in case of the axial line 0 डिग्री एंगल आस्तला किंतु हमें नेगेटिव रे देखिथिले नेगेटिव साइन आस्तला कोन ना इक्वेटोरियल दा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आइला p sin थीटा ताले एटी हमें कोन देखिले ना डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन रहउची इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन रहउची को क्षेत्र देखिले ना इक्वेटोरियल लाइन से देखो ता डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन रहउची तार ऑपोजिट डायरेक्शन में के रहइला मोर ना तार ऑपोजिट डायरेक्शन में मोर रहइला के ना इक्वेटोरियल लाइन तर बता रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पाई परिबा कारण तुमे तो पढिछो हमें e1 ले e एक्सियल केते पाइछो ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो एक्सियल वैल्यू पाइ जे k 2p/rq k 2p/rq दैट इज e1 धनियो e इक्वेटोरियल कोन पढिछो ना कोन रे इक्वेटोरियल आला केते इलेक्ट्रिक फील्ड रो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे केते ना k p/rq दैट इज e2 धनियो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड केते हो ए पॉइंट रे ना आई जणकर मैग्नीट्यूड रे जीवो तार बर्तन कोन करिबा एटा e1 e2 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एटा पॉइंट p द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p is equal to e1 plus e2 एटी e1 plus e2 means e axial और e equatorial त मतलब एंगल केते 90 डिग्री एठी मध्ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से पडुनी से सेम पॉइंट तीन जण बाचन देखो जदी ए बिना गोटे पैरेललोग्राम रो एडजेसेंट साइड कोनती ताको रिजल्टेंट के ताको दउची डायगोनल दउची आ से मध्ये से सेम मझी पॉइंट रो जाउची इनिशियल पॉइंट रो माने मैग्नीट्यूड केते हिजबो ना e1 रो स्क्वायर प्लस e2 रो स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा एठी cos थीटा थीटा जार केते नबो रे 90 डिग्री नबो काहे कि 90 नबो सर ना e1 और e2 भितर एंगल केते 90 से पई cos 90 नै गली आ cos 90 वैल्यू केते 0 तने ए पाटा 0 होइजो त रहियो केते ओनली e1 रो स्क्वायर प्लस e2 रो स्क्वायर e1 रो स्क्वायर मींस e1 रो स्क्वायर पर केते ला ना e1 रो स्क्वायर है हमरो e एक्सियल रो स्क्वायर और e2 रो स्क्वायर मींस e इक्वेटोरियल रो स्क्वायर डायग्राम लिखो छी बुझिबार डायग्राम में समस्त आउटर कोइ दोछि डायपोल मोमेंट रो डायरेक्शन रहला एपर डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एडी पॉइंट p एट एनी पॉइंट रे मु कोन करछि ना डिटरमाइन करबी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एटी थीटा एंगल लेली डायपोल मोमेंट आसे थीटा एंगल गला का सहित ना ए p लाइन सहित ए लाइन सहित तने पडाला तर एलोग्रा कंपोनेंट p cos थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट केते ना p sin थीटा p sin थीटा कहा पई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आइने तार कोडा इक्वेटोरियल लाइन को बुझाइबो एलोंग दा कंपोनेंट आइने को कंपोनेंट बुझिबो एक्सियल लाइन की हमें एक्सियल लाइन ले पड़ी छ डायपोल मोमेंट एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन में का रखिली एक्सियल लाइन ले इलेक्ट्रिक फील्ड आउ तार हमें पड़ी छ आ कोन ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल लाइन ले इलेक्ट्रिक फील्ड आउ डायपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन रहइबो
तारे p sin थीटा इक्वेटर लाइन लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन रोइला देखो एपटे डायपोल मोमेंट रोइला परे एपटे के रहउची ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो रिजल्टेंट एपटे रहउची इलेक्ट्रिक फील्ड रो ऑपोजिट डायरेक्शन पर 180 डिग्री तो आको दिनो को रिजल्टेंट के दबो ये दबो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आको दरे एंगल के ताइला 90 किंतु रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर एक्सियल हो न इक्वेटर हो जा सहित गोटे बीटा एंगल करछ सेटा हम डायरेक्शन पे नउची नेक्स्ट हम कोड करिबा नेक्स्ट कैलकुलेट करले देखिबो कैलकुलेशन वैल्यू आसीबो केपी समथिंग जा भी आसु देखुची E is equal to E1 square plus E2 square E1 square कहते हैं ना E1 है ना तुम्हारा K into 2P by RQ रो होल स्क्वायर प्लस E इक्वल टू कहते हैं K into P by RQ रो होल स्क्वायर कहते हैं आसियो ना K स्क्वायर 4 एडे कौन होची देखो k इनके खुल दियो पूरा खुल दियो सुविधा k into 4p k square 4p square by r6 plus k square p square by r6 कॉमन कौन जीवो k square p square कॉमन जीवो cos square क्लियर छाड़ दियो निकी सॉरी ए जो को कंपोनेंट तमरा आस्तिला डायपोल मोमेंट रो को कंपोनेंट आस्तिला ना डायपोल मोमेंट रो हमरा आस्तिला k into डायपोल मोमेंट रो एक्सियल लाइन पे को कंपोनेंट आस्तिला cos थीटा p cos थीटा पे आस्तिला by rq e1 एठी कोन आसीओ p sin थीटा आसीओ जति गाबे एट एनी पॉइंट देखले एक्सियल लाइन रो p पॉइंट डायपोल मोमेंट रो कोन आस्तिला डायपोल रो भांगी दिले कंपोनेंट रो डिवाइड करथिले उडा आस्तिला p cos थीटा और एला p sin थीटा एक्सियल लाइन पे एला p cos थीटा पे हम पाइछ एक्सियल लाइन एठी एक्सियल लाइन के है p cos थीटा आउ ई एक्सियल सेम डायरेक्शन होती तो p जा के तो पकइबो p cos थीटा पकइबो कारण डायग्राम में कोन नथिली एमती करथिल बा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट p एडी थीटा एंगल करथिला एडी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायपोल मोमेंट डायरेक्शन एटा असला p cos थीटा एपटा असला p sin थीटा आ तार ऑपोजिट डायरेक्शन में e इक्वेटोरियल थिला तार सेम डायरेक्शन में के थिला e एक्सियल थिला एडी e इक्वेटोरियल थिला एडी के थिला e एक्सियल तमे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन बेले तमे डायपोल मोमेंट कोन देखो p cos थीटा देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन देखुतिले एट एनी पॉइंट रे डायपोल मोमेंट कोन देखो p डायपोल कोन पकइबो p cos थीटा जति आले इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन बेले ता डाटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के थिला डायपोल मोमेंट के डायपोल मोमेंट थिला किंतु डायपोल मोमेंट को कंपोनेंट थिला p sin थिला जो 90 डिग्री था आको बदले एंगल 90 डिग्री बुझिलो एला किबो p जार के हम एक्सियल लाइन पे एक्सियल लाइन पे नउची p जगह रे p cos थीटा लिखिबी इक्वेटोरियल लाइन रे लिखुची तार परपेंडिकुलर कंपोनेंट डायपोल मोमेंट जार के लिखिबी p sin थीटा लिखिबी ताले e is equal to e1 square plus e2 square that is k into k square लिख देबो k square 4p square cos square theta by r6 by e2 square कहते हैं k square p square sin square theta by r6 कॉमन जीवो कोन ना k square p square by r6 कॉमन नै जीवो होइला कहते ना 4 cos square theta plus 3 sin square theta 4 cos square theta plus 3 sin square theta ताने कैप p by rq हे जो ता स्क्वायर रूट ता एपटे रूट 2 पर कोन रहइबो आ रूट 2 पर रहइबो 4 cos square theta प्लस खाली sin square थीटा sin square रे 1 minus cos square theta ताने कैप p by rq कैप p by rq स्क्वायर रूट रहइबो 4 cos square theta minus cos square थीटा 1 plus 3 cos square theta 1 4 cos square theta cos square theta plus 3 sin square this is the result on electric field at any point due to an electric diagram यही केस में लिखमु देखियो कोन काढबी ना रिजल्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करी का भाई ना एक्सियल लाइन भाई आ इक्वेटोरियल लाइन आ प्रॉब्लम करिवो एसएलआर प्रैक्टिस करिवो जा डाउट पछारी पर कमेंट बॉक्स तो मु सॉल्व करिवो सो रिजल्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो ना वर्तमान देखिया केस देखिया केस 1 फॉर एक्सियल लाइन बाय द एंगल बिटवीन द
एंगल बिटवीन पी एंड आर केते थिला 0 डिग्री पी एंड आर केते थिला 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड केते हो एक्सियल लाइन बाई ना इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाय आर क्यू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा द्वारा 0 डिग्री को दियो तने केते हला के पी बाय आर क्यू cos 0 जे 1 1 प्लस 3 कारण cos 0 जे 1 3 के 3 के पी बाय आर क्यू एटी 4 रूट करे जो 2 তাহলে k * 2p / r কিউ দেখো তুমি এক্সিয়াল লাইন প্রথমে যা সলভ করতে এটা পাইছিলে না আমি সেম কেস 2 রে কোন পাইবা ফর ইকুয়েটোরিয়াল লাইন থিটা আর এঙ্গেল কে দিলা 90 ডিগ্রি p আর r এঙ্গেল কে দিলা 90 ডিগ্রি মানে ইকুয়েটোরিয়াল কেটা আসবা আমার না kp / r কিউ 1 + 3 cos स्क्वायर 90 cos 90 जे 0 cos 90 0 यानी कितना है kp बाय r क्यू 3 पार्ट ए पार्ट तो 0 इज खाली तो रहिला 1 रूट को रहिला 1 तो देखो k बाहर को लेला एटा कोन ला p बाय r क्यू एटा इक्वेटोरियल पे मार्क करते ना देखो हमें जहां काट दिले एटी से डिटरमाइन कर देले ता ई इक्वेटोरियल तीनटा लो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस करियो प्रॉब्लम कोलाडा को सॉल्व करियो प्रॉब्लम कोलाडा बहुत दरकार हो प्रथम दुईटा काउंसिल पे बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस कर दो समस्त थैंक यू चार डाउट हो कमेंट बॉक्स में पठाइबो लाइक सब्सक्राइब